Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today I am going to discuss photochemistry of vision. We had discussed photochemistry of vision. Same is applicable to photochemistry of vision, but what the difference is we are going to talk about. But before we can discuss, as per my routine, one ayah from Holy Quran. It is an ayah from Surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. शायद एक दो दिन पहले मैंने एक और आयत पढ़ी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया, कि अपने माँ बाप और अपने भाइयों को भी दोस्त न बनाओ। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को तरजीह दें। यहाँ भी वही बात है कि ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ। दोस्त न बनाओ का क्या मतलब है कि उसके साथ बातचीत न करो, ताल्लुक ही न रखो। ना, दोस्त वो होता है एतमाद का रिश्ता होता है, उनके साथ ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशनशिप, तिजारत, एवरीथिंग वो करनी है। जो एतमाद वाला रिश्ता है उनके साथ, दोस्ती वाला, वो नहीं होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना, कि उनको दोस्त मत बनाओ। बादुम औलिया बाद, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो तुम में से उनसे मोहब्बत करेगा, फइन्नहु मिनहुम, फिर वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तर्जुमा देखने के ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ये एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी उनसे किसी से दोस्ती करेगा या मोहब्बत रखेगा, दोनों तर्जमा है। और मन यतवल्लहुम का दोनों तर्जमा है, उनसे दोस्ती रखना या उनसे मोहब्बत करना, वो बेशक उन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राय नहीं देता। वो जो दूसरी आयत मैंने शायद रेफर किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया, अपने माँ बाप, अपने बाप दादा को और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, कि अगर वो कुफ्र पर ईमान को तरजीह देते हैं। और वहाँ पे भी यही है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वहाँ पे ज़ालिमून का लफ्ज़ है कि वो ज़ालिमों में से है। तो अल्लाह पाक इसकी समझ दे। हमारी एतमाद का रिश्ता उनसे होगा जो ईमान वाले। अल्लाह पाक इस बात की समझ। So we will talk about the photochemistry of color, and we talked about the photochemistry. This is the rhodopsin visual cycle. That is, rhodopsin on absorption of light energy is converted into beta-rhodopsin, lumi-rhodopsin, meta-rhodopsin in very small fraction of seconds, and finally it is because of this change is because of the conversion of 11 cis retinol into all trans retinol. इसलिए these are the different loose combination of that all trans retinol and this scotopsin, the protein scotopsin, उसके loose. So rhodopsin is converted, but here in cones the only difference is in rhodopsin. Instead of rhodopsin, it is iodopsin. That is, what is the difference? It's a difference in protein. Instead of scotopsin, it is photopsin. Rest of the cycle is the same. That is, this iodopsin, which is the combination of a protein, rods may it was scotopsin, it is photopsin here. And this photopsin combined with the 11 cis retinol to form the iodopsin, and iodopsin on absorption of this light energy is converted into different compounds. Their name may not be beta-rhodopsin. You can call them beta-iodopsin or the lumi-iodopsin or the meta-iodopsin 2. But these are the loose combination of protein and the 11 all trans retinol. So these loose combination will also result here as well. And when it is converted into meta-rhodopsin or meta-iodopsin 2, that has got the same function. What was that function? This beta-rhodopsin 2, this causes the breakdown of that
cyclic GMP. Cyclic GMP was a splint between at the sodium channels, and sodium was leaking in. And when metalrhodopsin is formed, it causes the breakdown of that splint, and the leakage of sodium back into the rod is stopped. And here the same is true here. That is, whatever the metalrhodopsin or metoiodopsin 2 is formed, that causes the breakdown of the that splint, which is keeping the sodium channel open in the outer segment. Leakage of the sodium back is when that splint is not there, leakage back will be stopped, and that will result into hyperpolarization. We have discussed photoreceptors. Receptor potential is in the form of hyperpolarization. वहाँ rod की hyperpolarization देखी थी, यहाँ पे cones की hyperpolarization. So everything is the same process is there, what we observed in case of rod. Only difference is this iodopsin instead of. So protein is different. One more thing about this, another very important difference. This photopsin is also of three types. You can name them. You photopsin 1, photopsin 2, photopsin 3. There are three types of the protein, and that those three types of the protein results into the iodopsin, three types of iodopsin. What is the difference in those three types of iodopsin? They are sensitive to different colors. बस इतनी सी बात है. They are sensitive to different range of the wavelengths of the light. What are colors? They are different wavelengths of the light. Wavelength change होती है तो color change होता है. So the iodopsin 1, say for one iodopsin, that will be sensitive to light rays near blue wavelength. आगे हम देखते हैं what are the wavelength of the blue light or red light. Near around the blue, so those cones which contain that iodopsin, those will be known as blue cone. And another photopsin 2, which will combine with again the 11th-cis retinol, is the same in every cone or every rod में भी वही है. So that will result into formation. The second photopsin will result into the formation of iodopsin, another type of iodopsin which will be sensitive to another range of the wavelengths of the light. Say that is the green light. Then another third one may be sensitive to only the range wavelength of the light nearing red light. That is known as red cone. So this photopsin differs in different iodopsins. So that's why, because of this, there are three types of the cones. Main concern today of our discussion is how these three cones, वो तो आसान हो गया, three cones, the result is because of the difference in the photopsin. And their photopsin differs and their sensitivity to different wavelengths of the light. वो ये एक लाइट एब्जॉर्ब करती है मैक्सिमम, दूसरा फोटॉप्सिन दूसरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तीसरा तीसरी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके करीब वाली लाइट हम देखेंगे. रेंज ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाय दीज आयोडोप्सिन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोडोप्सिन. Main concern where today we want to discuss, we want to understand how only three cones result into, we can see hundreds of colors. हम बहुत से कलर देख सकते हैं कौन हमारे तीन है, तो ये कैसे होता है, we are going to talk about. So this photopsin visual cycle, or you can call rhodopsin visual cycle, now you can call it as iodopsin visual cycle, or you can call it photochemistry of color vision. इसको हम बोल सकते हैं. That's why. So photochemistry of color vision, that is color sensitive pigment in cones differs only in protein. उस प्रोटीन का नाम हम अलग रख लेंगे. रॉड्स में हमने उसका नाम स्कोटॉप्सिन रखा हुआ था, यहाँ फोटॉप्सिन रख ली. That is opsin portion, protein portion. The protein portion in cones is called photopsin. उसको हम photopsin बोल देते हैं. That is photopsin. So there are three types of photopsin. पिछली डायग्राम में भी हम देख के आ गए. This results into three types of cones. There are three types of cones, and blue cones, their peak sensitivity is at 445 nanometer. वो ज्यादा maximum sensitivity will of this blue cones photosensitive pigment will be 445. ये नहीं है कि सिर्फ 445, नहीं, peak sensitivity.
maximum sensitivity, maximum absorption of that light, which has got this wavelength of 445 nanometer. 440 वाली भी absorb करेगी, 430 वाली भी absorb करेगी, उससे भी कम वाले भी absorb करेगी और आगे वाले भी absorb करेगी, but it is more sensitive to this 445 nanometers वाली wavelength. इसी तरह green cones, peak sensitivity of which is 535, ugly range में 535. There is overlapping. That is, there are some wavelengths of the light which stimulate the blue cone and the green cone. दोनों को there is overlapping. लेकिन peak sensitivity of blue cone is this and peak sensitivity of green cone is this and red cone की भी 570 नैनोमीटर. वो आगे वाली wavelength जो है ज्यादा wavelength वाली 570 नैनोमीटर वाली peak sensitivity of the red cones उसकी होगी. ये डायग्राम. That is, blue cones that will be sensitive to less than 370 Kelvin, for example. 370 violet color light, violet color की light. जैसे the lights of those spectrum के colors हैं. That is violet, blue, green, yellow, orange and red. Waveguide जैसे violet, indigo यहाँ दरमियान में indigo आ जाएगा. So violet color की light which is near this less than 400, their sensitivity, blue cones will be stimulated to some extent. इतनी कोई 25% stimulation होगी. आगे हम देखें. अगली ब्लू कलर की लाइट होगी, उसकी सेंसिटिविटी ये 445 जो हम कह रहे थे उसमें सेंसिटिविटी. दिस इज सेंसिटिव टू ग्रीन लाइट एज वेल. ग्रीन की ब्लू को देखें, ग्रीन लाइट को भी सेंसिटिव है और उससे अगली लाइट को भी शायद येलो को भी किसी हद तक सेंसिटिव है. बट दी peak sensitivity, maximum sensitivity, maximum absorption of light will occur at 445 वाली वो here. That is blue cone is that. So blue cone is sensitive to range of light between 370 Kelvin up to 540 Kelvin, 50 Kelvin. इसके दरमियान वाली लाइट रेज विल बी एब्जॉर्ब बाय इट एंड देयर विल बी डिकम्पोजिशन, बट मैक्सिमम विल बी 445. ब्लू कलर के करीब वाली जो लाइट है उसमें मैक्सिमम स्टिमुलेशन विल बी देयर. बाकी अगली कौन की कम स्टिमुलेशन होगी और उससे पहले वाले कलर की भी, वायलेट कलर के भी कुछ इतनी डिग्री की स्टिमुलेशन. And similarly, green cone sensitivity starts from here. You can see दोनों के दरमियान में 440, 450 के करीब है. It starts minimum and it increases and maximum stimulation is at 525 or something like that, 550, 540. And it ends here at 625 या 6 के करीब. That is, उस sensitivity खत्म हो जाती है. Red cone की sensitivity, it responds to light between 460, 470 के करीब वाली light को sensitive, and with the increasing wavelength more and more absorption will occur and peak sensitivity is somewhere here 575 something. हमने पिछली diagram, पिछली slide में देखा था. So that is the range of the sensitivity of different cones to different wavelengths of the light. Different wavelength of the light को differently sensitive है. ये rod की sensitivity की बात की हुई है. We are not concerned with that. अभी उसकी so there are 3 types of the cone. They are sensitive to different wavelength to different degree. अब नई बात मैंने ऐड कर दी, degree. That is, this blue cone is maximum sensitive to 445 wavelength of the light. और अगर 500 वाली वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगी तो उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी होगी, 20 कह लें, 20% सेंसिटिविटी. और अगर 445 होगी ऑलमोस्ट 100%. सो दिस ब्लू कोन इज सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट रेंजिंग फ्रॉम हेयर टू डिफरेंट डिग्री. किसी को बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी है 445 जैसे हमने देखा, एंड इस सेंसिटिविटी इज लेस टू अदर वेवलेंथ ऑफ द लाइट. उससे पहले भी उससे नीचे भी कम होते होते. इसी तरह ग्रीन कोन इज आल्सो सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू डिफरेंट डिग्रीज. मैक्सिमम सेंसिटिविटी उसकी पीक सेंसिटिविटी वाली जो एरिया है. रेड कोन इज आल्सो सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट टू डिफरेंट डिग्री को स्टिमुलेशन होती है. और ये याद रखें,
Now this concept of degree of stimulation. एक wavelength of the light may be stimulating in 3 cones. मिसाल के तौर पर एक 500 वाली will be stimulating the blue cone, will be stimulating the red cone, will be stimulating the green cone, but to different degree. Green cone इतनी stimulate हुई है, red इतनी हुई है और blue भी शायद इतनी हुई है, एक खास wavelength of the light. So different monochromatic एक wavelength of light जो है, एक different wavelength of the light, they stimulate the different cone to different level, different degree की stimulation होती है. इस पे हम different color देते हैं. That one particular monochromatic light जो यहाँ पे range कर रही है, ये मेरी पेंसिल को देख लें, this will be stimulating the red cone not at all. It will be stimulating the green cone to some degree, 25, 30 degree, and it will be stimulating the blue cone to up to 75 degree something. So this ratio of the stimulation of different cones by a single monochromatic light will be perceived by brain, but by that particular color अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो with that probably that will be blue. उसे हम कह सकते हैं. So light absorption by the photosensitive pigment. This is the pattern of absorption of light by the those photosensitive pigments. किस कलर की लाइट कौन सी एब्जॉर्ब होती है. This theory जो मैं अभी बयान कर रहा था, that is degree of stimulation of different cones differs in different cones. एक मोनोक्रोमैटिक लाइट डिफरेंट कोन को डिफरेंट डिग्री तक स्टिमुलेट कर सकती है, जैसे मैंने पेंसिल रख के दिखाया. This is known as this Young-Helmholtz theory, ट्राइक्रोम थ्योरी, ट्रिपल कलर की थ्योरी है. यंग-हेल्महोल्ट्ज थ्योरी इसको कहते हैं. उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. डिफरेंट मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ स्टिमुलेट डिफरेंट कोन्स टू डिफरेंट डिग्री. वो जो मैं बोल रहा था ये वन सेंटेंस में आ गया. दैट इज each monochromatic light can stimulate the 3 cones to different degree. ऑरेंज मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी अपनी जो मोनोक्रोमैटिक लाइट उसकी वेवलेंथ इज 580 नैनोमीटर है. इट स्टिमुलेट्स रेड कोन टू 99%. 580 वाली जो ऑरेंज कलर की लाइट होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट, एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, 580 वाली की बात कर रहे हैं. It can stimulate red cone to 99%, or it also stimulates the green cone to 42% of its peak sensitivity, and it stimulates the blue cone not at all. Blue cone उसकी रेंज से बाहर है. ये 580 is out of the range of the blue cone. वो जो कर्व हमने बनाई है वो 580 उसकी बाहर है. So this 580 monochromatic light, which is orange color light, it stimulates the blue cone not at all. उस रेंज में नहीं है. It stimulates the green cone to 42%, but it stimulates so this ratio of red, green, blue stimulation, 99 ratio 20, 42 ratio 0. This ratio our brain is trained to perceive as orange color. ये orange color. इस रेशो पे ब्रेन परसीव करता है. ये रेशो चेंज होगी तो कलर की परसेप्शन भी चेंज हो जाएगी. So this is known as the Young-Helmholtz theory of color vision. Thus ratio of RGB red, green, blue की ratio cone stimulated by 580 is 99, 42, 0. This ratio brain में जब जाएगी red RGB के हिसाब से 99 and 42 and 0, this is orange color. अगर इसमें चेंज कर दें 99, 42 और इधर 10 कर दें तो इस will be something different color. ये ऑरेंज नहीं रहेगी, कुछ और कलर हो जाएगा. या इसको 95, 42, 0 कर दो, इट विल बी अनदर रेशियो, एक और कलर होगा. दैट्स व्हाई विद द यूज ऑफ ओनली 3 कोन्स वी कैन सी ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ शेड्स ऑफ द कलर्स. ऑफ थाउजेंड्स में भी बोल सकते हैं. This ratio of stimulation is perceived as that particular color, that orange color. हम orange की बात कर रहे हैं 580 वाली, so it will be orange color. बाकी कलर भी इसी तरह परसीव होते हैं. ऑरेंज कलर के डिफरेंट शेड्स भी हो सकते हैं. ब्लू शेड्स कितने हैं, वो क्या होता है, यही रेशो चेंज होती जाएगी. ग्रीन के कितने शेड्स हैं और बाकी कलर के कितने शेड्स हैं. सो दिस रेशो डिफरेंस इन ऑल दोज हंड्रेड्स ऑफ कलर्स में ये रेशो फर्क होती जाएगी. ब्रेन विल बी परसीविंग एज दैट डिफरेंट कलर्स.
So for example 83 83 0, ये रेड ग्रीन ब्लू उसी रेशो से रेड ग्रीन ब्लू इज परसीव्ड एज येलो कलर. अभी आगे डायग्राम में भी आ जाएगा. 83% दोनों स्टिमुलेट कौन कौन सी, रेड भी और ग्रीन भी 83% तक स्टिमुलेट हो रही हैं और ब्लू इज नॉट स्टिमुलेटेड एट ऑल. दिस रेशो 83 83 0 विल बी परसीव्ड एज येलो कलर. येलो कलर इज, अब इससे 83 85 5 कर दें, फर्क करें, it will be near yellow color, लेकिन it will be a different shade of yellow color. So 31 76 36, अब ये रेड ग्रीन ब्लू, रेड 31 and 76 ये ग्रीन वाली और ब्लू वाली 36% इज ग्रीन कलर. ये ग्रीन कलर है. ग्रीन कलर डजंट मीन कि ओनली ग्रीन कौन इज स्टिमुलेटेड. ग्रीन कलर वो है ये इस रेशो में जाएगा. ग्रीन हमने उनका कैन पीक सेंसिटिविटी ग्रीन के करीब है इसलिए हमने उसका ग्रीन का नाम दे दिया. दैट इज सेंसिटिव टू अदर कलर्स एज वेल, उसको भी एब्जॉर्ब करती है. ग्रीन हमने इसलिए नाम दिया कि उसकी पीक सेंसिटिविटी इज रेंजिंग बिटवीन द ग्रीन कलर वेवलेंथ ऑफ द लाइट. रेड को इसलिए कहा कि वो रेड के करीब वाली लाइट को मैक्सिमम सेंसिटिव है. सो दिस 31 76 RGB stimulation, this 31 76 36 will be perceived as the green color. और आगे भी 0097 यानी रेड भी ग्रीन भी स्टिमुलेट ना हो, ब्लू भी स्टिमुलेट, रेड ग्रीन भी, रेड भी स्टिमुलेट ना हो, ग्रीन भी स्टिमुलेट ना हो, सिर्फ ब्लू से स्टिमुलेट हो रही है 97%. दिस इज ब्लू कलर, इसलिए इसको ब्लू भी नाम भी दिया है. तो दैट इज क्या थ्योरी हुई. डिफरेंट कलर्स, सारे कलर्स हम कैसे देखते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिग्री ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट कोन्स एंड दिस डिग्री ऑफ स्टिमुलेशन, दिस रेशो, दैट पर्टिकुलर रेशो इज परसीव्ड बाय आवर ब्रेन एज दैट पर्टिकुलर कलर. अब ये सब्जेक्टिव फीलिंग है. अभी हम देखेंगे ना, मिसाल के तौर पर किसी में ग्रीन कोन ना हो, रेड कोन ना हो, दिस इज कॉमन, कलर ब्लाइंडनेस की बात है. रेड कोन ना हो और ये ना हो 99%. अब ऑरेंज कलर को जब वो देखेगा तो उसकी रेशियो ऑफ स्टिमुलेशन ब्रेन कैसी होगी, दिस विल बी 0 0 42 0. ये पता नहीं कौन सा कलर होगा, ये तो उस बंदे को ही पता है जो रेड उसको प्रोटेनोव कहते हैं, रेड कलर ब्लाइंड जो होते हैं, उसी को पता हो. दैट विल नॉट बी दैट ऑरेंज कलर. वो शायद आदि हो जाए उसको ऑरेंज कहने का, लेकिन दैट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट कलर उसको नजर आएगा. इफ दिस बिकम 0 0 42 0 हो जाएगी उसकी, फर्ज कर 580. अगर रेड कोन है ही नहीं तो उसकी रेशो ऑफ द ब्रेन को रेशो कैसे जाए, ये 0 हो जाएगी और ये 42 ही रहे, और ब्लू में तो वो है ही नहीं 580 वाली. So person will be perceiving as something strange color. We can't name that color. That is the our subjective feeling, subjective perception है कि उसको कैसा नजर आ रहा है. So equal stimulation of all three cones gives white color. चलो ये भी एक ऐड कर ले. Equal stimulation of this is that white color. Now this diagram is that representation. That is blue light. Blue light is here. It is stimulating the 97% blue cone. Green को टच भी नहीं किया और रेड तो है ही दूर. So RGB 0097 जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, this will be blue color. और हमने येलो कलर को देखा था. येलो कलर उसकी वेवलेंथ इज समवेयर हियर एंड दैट विल बी स्टिमुलेटिंग बोथ रेड एंड ग्रीन 83% हमने कहा था. क्या कहा था, 83 83 0. RGB के हिसाब से हम रेशो लिखते हैं, आदत है हमारी, कस्टम हमारी ये है कि RGB, वरना हम उल्टा भी लिख सकते हैं, बात तो वही होगी हमारे समझने के लिए. RGB R383, green 83 and blue is 0%. So 83 83 0 will be perceived as yellow color. ये येलो कलर होगा. और ऑरेंज कलर को पहले भी हम बोल रहे हैं 42 and this will be stimulating 42%. ये 0 है और वो पता नहीं 99% स्टिमुलेट हुआ है. So
degree of stimulation of different color sensitive cones by the lights of four colors, ये चार कलर, blue और green और yellow और green को देख लें, green की wavelength यहाँ पे है, it is stimulating the red cone to 31%, blue cone को 36%, नहीं सॉरी रेड को 31% और ग्रीन ब्लू को इतना और ग्रीन को 67%. दिस रेशियो विल बी परसीव्ड एज ग्रीन कलर. और इससे आगे पीछे जरा होगा, इट विल बी ग्रीन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन आ जाएंगे. इसको ब्लू के आगे पीछे जरा सा इधर करेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी कुछ और हो जाएगी. इट विल बी समथिंग ब्लू का मिसाल के तौर पर यहाँ आते आते इट बिकम्स वायलेट, ये वायलेट हो जाएगा. So that's how we see different color by the use of these three types of the cones. Now color blindness, आखिर में हम color blindness क्या होती है? Some animals are dichromats, यानी कुछ एनिमल्स में दो किस्म के कॉन्स हैं, उन दो के इस्तेमाल से वो कलर देखते हैं. एंड लॉन्ग वेव कोन्स एंड शॉर्ट वेव कोन्स, रेड वाली साइड वाले कौन और ये वायलेट वाली साइड वाले कौन, ब्लू वाली साइड वाले कौन, लॉन्ग वेव कोन्स एंड शॉर्ट वेव कौन, बस इसी से उनकी आपस में. सम एनिमल्स आर मोनोक्रोमैट्स, उसका पास एक ही कलर है. मोनोक्रोमैट्स एक ही किस्म के कौन हैं, पता नहीं कैसे कलर उनको नजर आते हैं. बट वी ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, वी आर ट्राइक्रोमैट्स. We have got three types of the cones, and the combination in the form of that degree of stimulation, no other combination. ये नहीं है कलर को मिक्स करना है, नो, कलर तो एक ही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये ऑरेंज 580 की, तो it will stimulate different cone to different degree. ये इसको हम मिक्सिंग कहें. This is not mixing of color, it is a different degree of stimulation of different cones which results into the perception of that particular color. Mixing of color का लफ्ज अच्छा नहीं है. It is the degree of stimulation by different cone by that one particular color. So human, apes and monkeys are trichromates. We have got three types of the cones. And genes for rhodopsin, वो कल उसके लिए black and white वीएन के लिए जी, उसके लिए rhodopsin कौन सा जीन चाहिए? जीन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन सा 11 से रेटिनॉल तो विटामिन डी है, विटामिन ए है ना, वो तो सब में बराबर है ना, विटामिन ए जो हमें चाहिए होगा. जो genes is responsible for the transcription and finally formation of the protein which combines with the 11-cis-retinol and rhodopsin. That protein is scotopsin, and for the transcription of that protein RNA जो उसका बनना है, that is located in chromosome number ऑटोसोम जो क्रोमोसोम नंबर पेयर होते हैं ना, तो उसका नंबर 3 पेयर पर है. मेल में भी फीमेल, वो दोनों आपको पता है ना, पेयर का एक पार्ट मेल से आया होता है, एक फीमेल से आया होता है, तो पेयर नंबर 3 में दोनों क्रोमोसोम पर वो मौजूद होगा. जीन फॉर द ब्लू सेंसिटिव पिगमेंट, वो भी ऑटोसोम पे मौजूद है, क्रोमोसोम नंबर 7, वो क्रोमोसोम नंबर 7 पर मौजूद है. मेल से भी आया हुआ 7 और फीमेल से भी आया हुआ 7. ये ब्लू सेंसिटिव के लिए जो फोटोप्सिन बनाना है ना, वो उसका जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 7. क्लियर हो गया? अब आया असली बात, यानी खास बात. असली बात तो सारी बातें असली हैं, खास बात दैट इज जीन फॉर रेड एंड ग्रीन बोथ is located on X chromosome. ये बहुत फर्क वाली बात आ गई. It is located on the 23rd pair of chromosome. अब 23rd भी हो गया, 23rd पेयर आखिरी पेयर, वही उसको 23rd कहते हैं, सेक्स पेयर जिसको कहते हैं. उसका भी Y पर नहीं है, X पर है. This gene is located on X chromosome, जो मदर से आता है. X chromosome मेल में भी मदर से आता है और फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, एक बाप से आ जाता है, एक मदर से आ जाता है. बट इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. इफ इट इज डेफिशिएंट, अगर ये जीन नहीं है एक्स क्रोमोसोम में, एक ही एक्स क्रोमोसोम है मेल में, सो मेल विल बी सफरिंग. इट इज, क्योंकि मेल में जब एक्स क्रोमोसोम एक ही है, इफ दिस एक्स जो माँ से आए हुए है, फर्ज करो मेरी माँ से जो एक्स क्रोमोसोम आया है, उसमें ये वाला जीन डेफिशिएंट हो, ग्रीन वाला या रेड वाला, सो आई विल बी डेफिशिएंट विद दैट रेड पिगमेंट.
या रेड कोन मुझ में नहीं होगी तो आई विल बी सफरिंग फ्रॉम रेड कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम प्रोटेनोपिया कहते हैं। आगे आ रहा है। लेकिन अगर यही बात मेरी बहन में हो कि मेरी माँ से एक्स क्रोमोसोम जो उसको मिला है वो तो वही है जो मुझे मिला है, मेरी बहन को मेरे बाप से भी मिला है, दैट मे बी नॉर्मल। अगर मेरा बाप कलर ब्लाइंड नहीं है तो वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि उसका एक्स ठीक है। सो बहन में नहीं होगा, मेरी बहन में, बिकॉज दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर। ये भी हीमोफीलिया की तरह की डिजीज है अगर ब्लड में आपने पढ़ा हुआ है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है कि ये अगर किसी में मौजूद है, एक एक्स पर मौजूद है, डेथ इज सफिशिएंट, वो दूसरे को सप्रेस कर लेगा। इट इज रिसेसिव डिसऑर्डर। सो दिस जीन फॉर बोथ ग्रीन एंड रेड के लिए जो फोटोप्सिन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए जीन है, दैट इज एक्स लिंक्ड। तो इस दोनों डिजीजेज अगर ग्रीन डेफिशिएंट है या रेड डेफिशिएंट है, दिस इज यूजुअली मेल में ये डिजीज होती है, फीमेल सिर्फ कैरियर होता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं उतना हूं तो मेरी बहन विल बी कैरियर, वो खुद सफर नहीं करेगी, उसको एक नॉर्मल जीन मेरे बाप से मिला हुआ है। अगर मेरी माँ में एक्स क्रोमोसोम शी वाज कैरियर, फर्ज करें मैंने फर्ज किया हुआ है। सो जीन फॉर रेड एंड ग्रीन सेंसिटिव पिगमेंट इज ऑन क्रोमोसोम एक्स। सो डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दीज कोन्स causes color blindness, चाहे ये 7 वाला हो ब्लू कोन, वो ब्लू कोन की ब्लाइंडनेस होगी, और ये ग्रीन की डेफिशिएंसी हो तो ग्रीन की ब्लाइंडनेस होगी, और रेड की डेफिशिएंसी हो तो रेड की ब्लाइंडनेस होगी, उसको हम देख लेंगे। So this is deficiency of any of these cones causes color blindness। अब उस color blindness को हमने देखना है। प्रोटेनोपिया, दिस इज दी रेड कलर ब्लाइंडनेस जो मैं कह रहा था। इफ दिस रेड कलर का जो जीन है एक्स क्रोमोसोम में वो ना हो किसी में, तो देन मेल विल बी सफरर, मेल को कलर ब्लाइंड होगा। फीमेल में सिर्फ कलर ब्लाइंड उस वक्त होगा जब कैरियर खातून से एक कलर ब्लाइंड ने शादी की हो, दोनों का एक्स क्रोमोसोम दोनों खराब होंगे। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर मेरी माँ में एक्स क्रोमोसोम खराब था तो बाप का ठीक था, तो बहन ठीक होगी। लेकिन इफ मेरे बाप भी कलर ब्लाइंड है, वो रेड कलर ब्लाइंड है, तो उसको अपनी माँ से मिला हुआ था, फर्ज करें ऐसे है, देन दी उसके फिर मेरी बहन भी कलर ब्लाइंड हो सकती है। तो दिस इज नोन एज रेड कलर ब्लाइंडनेस को हम कहते हैं प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोप्स कहते हैं उनको, रेड कलर ब्लाइंड, दे आर प्रोटेनोपिया। एंड ड्यूटेनोपिया इज द ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अगर किसी में ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस है, वो वाली कोन डेफिशिएंट है, वो भी है, उसकी पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है। मेल आर यूजुअली सफरर एंड फीमेल आर द कैरियर। लेकिन फीमेल सफरर कब हो सकते हैं? जब उनके माँ बाप दोनों हो, एक कैरियर हो एक सफरर हो। एंड दी ट्राइटेनोपिया, वो ब्लू 7 वाला जो जीन है, वो एक्स लिंक्ड नहीं है, वो एक्स लिंक्ड नहीं है, वो 7 नंबर क्रोमोसोम पर मौजूद है। तो अगर उसमें भी कोई खराबी हो तो वो वीकनेस होती है। इसलिए आमतौर पर कंप्लीट ब्लाइंडनेस में ना भी हो, अगर दोनों पे ना हो तो फिर तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ट्राइटेनोपिया इज द ब्लू कलर ब्लाइंडनेस और वीकनेस, ब्लू कलर। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। Protanopia and deuteranopia are X-linked. I have explained it. And recessive character, X-linked recessive character like hemophilia. And Duchenne muscular dystrophy भी ऐसी एक डिजीज है, शायद आप मेडिसिन में आगे पढ़ेंगे। ये भी एक डिजीज है। Duchenne muscular dystrophy भी X-linked recessive character है, जो males are sufferer and females are carrier। तो हीमोफीलिया की तरह ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फीमेल आर कैरियर एंड मेल आर कलर ब्लाइंड। किसके लिए? ड्यूटेनोपिया के लिए, प्रोटेनोपिया के लिए, इसके लिए नहीं, ट्राइटेनोपिया के लिए नहीं। कलर ब्लाइंडनेस टेस्टेड बाय, टेस्ट कैसे करते हैं हम? कलर दिखाने होते हैं उसको। टेस्टेड बाय स्पेशली डिजाइन स्पॉट चार्ट्स, इशियारा चार्ट्स जिनको कहते हैं। यू मे हैव सीन इन योर फिजियो लैब, या कहीं आप नेट पर भी देख लें, इशियारा चार्ट्स आर अवेलेबल, आप देख सकते हैं। इशियारा चार्ट, दोज आर नोन एज इशियारा चार्ट्स। दोज आर दी टेस्टेड बाय स्पेशली डिजाइन स्पॉट चार्ट्स होते हैं। स्पॉट चार्ट्स होते हैं। कंफ्यूजन ऑफ स्पॉट्स, confusion of spots of several different colors is specially created to test the color blindness। जैसे मैं कह रहा था कि किसी में फर्ज करें वो रेड कोन है ही नहीं, तो वो रेड कलर को कैसे देखेगा? देखेगा
रेड कलर की, ऑरेंज कलर की मिसाल दे रहे थे ना, दैट इज उसका 83% वो है तो रेड का 0 हो जाएगा उसका 97% वाला, और वो ब्लू तो है ही 0, लेकिन अब रेड नहीं है तो वो 0 होने से उसको जो कलर नजर आएगा दैट विल नॉट बी ऑरेंज कलर, वो पता नहीं कौन सा कलर होगा, तो कंफ्यूजन ऑफ द कलर होगी। तो मिसाल के तौर पर दिस normal person can read this as 7, this is 7 and this is 4, I don't know आप सारे, आप में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें कितने परसेंट, this is normal person will read it as 74, this is one plate from the Ishihara chart, इसको नॉर्मल पर्सन पढ़ेगा 74 और जो नॉर्मल पर्सन रीड्स इट 74, लेकिन जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस पर्सन विल रीड इट 21, अब आई कांट रीड इट 21, a normal person cannot read it 21, उसकी पता नहीं कंफ्यूजन, उसको ये कलर कैसा नजर आता है कि उसको ऐसे 2 लिखा हुआ नजर आता है और इसमें उसको 1 लिखा हुआ नजर आता है, ये चीजें उसको मिक्स हो जाती हैं। So red green color blind person will be reading it as 21 और नॉर्मल पर्सन इज रीडिंग एज 24, तो डिफरेंट इस तरह के बहुत से और हैं, दैट इज इशियारा चार्ट का एक और चार्ट, ये मिसाल के तौर पर दिस नॉर्मल पर्सन, इफ यू कैन रीड इट, नॉर्मल पर्सन विल रीड इट एज 42, इसको 42 पढ़ेगा नॉर्मल पर्सन, मुझे नजर आ रहा है ना, हर नॉर्मल आप में से जितने भी नॉर्मल है मेरे व्यूअर्स, अगर उनको नजर आए दिस इज 42, ये नजर आ रहा है, बट प्रोटेनोप दैट इज जिसका रेड कोन्स डेफिशिएंट है वो उसको सिर्फ 2 नजर आएगा, ये उसका मिक्स हो जाएगा, वो उसको ये सारा उसको एक जैसा नजर आएगा, सिर्फ 2 नजर आ रहा होगा, तो प्रोटेनोप विल रीड इट 2, पता नहीं कैसे, जैसे मैंने कहा ना जैसे सब्जेक्टिव परसेप्शन, तो उसको सिर्फ ये 2 वाला, ये सारा एरिया उसको एक जैसा नजर आएगा, या नजर भी आ रहा होगा तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा इस 4 को एग्जैक्टली, तो दिस इज दी, एंड जो ड्यूटेनोप है जो जिसको कहते हैं ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, उसको 4 नजर आ रहा होगा, 2 नजर नहीं आ रहा होगा, यानी ये ग्रीन, ये उसको ये 4 नजर आ रहा होगा, पता नहीं ग्रीन नजर आ रहा है कैसा नजर आ रहा हो, ये भी कांट से उसको, लेकिन वो ही विल बी एबल टू डिफरेंशिएट दिस, इनको इनसे अलग कर लेगा, तो ये प्रोटेनोप को इन दोनों को अलग नहीं कर सकता, तो अब ये ड्यूटेनोप इनको इससे अलग नहीं कर सकता, उसको ये सारा एरिया एक जैसा ऑलमोस्ट एक जैसा नजर आ रहा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशिएट 2 नहीं कर सकेगा, तो ड्यूटेनोप विल बी रीडिंग इट एज 4, सो दैट्स अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। इसके बहुत से इशियारा चार्ट में और बहुत से पार्ट्स हैं कि उसको ट्रेस करते हैं, कि इसको ट्रेस करो, रेड लाइन को ट्रेस करो, वो प्रॉपर ट्रेस नहीं कर सकते, सो दैट्स अबाउट द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कलर विजन। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी, नाउ हमने रेटिनल फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं, अब हम इससे आगे जाएंगे। All this information from the retina is collected by the ganglion cells and optic nerve cell. Now the pathway of this transmission of this information through the visual pathway cortex तक कैसे पहुंचती है, next हमारा लेक्चर इंशाल्लाह उस पे होगा, visual pathway। Hope to see you in next, and please do subscribe और share भी करें बाकी लोगों के साथ। If you have got some questions you can ask in the that comment section. Thank you very much.